Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Okay, myself Prajakta Pereira, and I'll be teaching you the subject called Basic Electrical and Electronics Engineering, that is BEE. Okay, now course code for this subject is 22310. Total marks allotted to this subject is 150 marks. Okay, out of which 100 marks goes to your theory and 50 marks for practical. Okay, this 100 marks again divided into two parts, like 70 is for your theory paper and 30 marks for your progressive assessment. Okay, now in this subject you have to study electrical as well as electronics. Okay, so it is a combination of two branches. Okay, now you have total 6 units, or you can say 6 chapters. First 3 chapters or first 3 units are related to electrical and last 3 units are related to electronics. Okay, now you all must be thinking why we need to study this particular subjects when we are going to, because we are going to be mechanical engineers, right? But then see students, if you want to be a good or successful engineer, okay, you should know some basics of all the other branches. Okay, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, right? Okay, so this subject is going to be very useful, okay, for you people, right? So let us start our first chapter or first unit, electric and magnetic circuits. Okay, so in this particular chapter we are going to study about electrical circuit, magnetic circuit, terms related to electric and magnetic circuit, then difference between them. Then we are going to learn or study some laws like Faraday's law, Lenz's law. Okay, so let us begin, and weightage of this chapter is 8 marks. Fine, so let us begin with electric circuit. Okay, so what is electric circuit? So before I start electric circuit, I will clear some basics. Okay, I will explain some basics to you, like how current flows through a conductor. Okay, suppose you have a conductor over here. Okay, एक conductor, एक wire है आपके पास. Suppose this is a copper wire. Okay, now conductor consists of what? Conductor में क्या होता है? Conductor में electrons होते हैं, बराबर? It has got electrons, right? These are the electrons present in the conductor. Okay, now क्या electrons flow हो रहे हैं अभी? Yes, they are flowing, but they are flowing in random manner. Like this electron, it may flow in this way, this electron will flow in this direction, this electron in this direction, right? They have random directions. Okay, now what if I connect a source or a battery to this wire? Okay, to this conductor, if I connect a battery or a source, okay, with positive terminal and negative terminal, so what will happen now? Okay, you must be knowing similar charges what repel each other and dissimilar charges attract each other. Okay, now similar charges means what? Negative, negative, positive, positive, they will repel each other, and positive, negative will attract each other. Okay, now because of this, what happens? If you see here, this is a negative terminal and these electrons are also negative, so negative will repel each other. तो ये negative terminal क्या करेगा? Electrons को repel करेगा, push करेगा ये side, बराबर है? So it will push all the electrons this side. So ये सारे के सारे electrons कहाँ पे flow हो जाएंगे? They will try to go towards the positive battery. Okay, तो वो यहाँ से ऐसे flow होना start हो जाएंगे, and electrons will start flowing like this, in this direction, in this manner. Okay, so also because there is a positive terminal and this is positive and this is negative, so positive negative will attract each other. So ये positive battery इसको attract कर रहा है, negative इसको repel कर रहा है, तो all the electrons will start flowing in this direction. Okay, whenever you know, and because of this flow of electrons, current will start flowing through the circuit. Okay, but you must be knowing
डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा. So current will start flowing through this direction. Okay, so in this direction, in this manner, current will start flowing. Understood? So this is the basic concept how current flows. Okay, now यहाँ से क्या समझ में आया आपको? Current flows due to flow of electrons. Okay, now let us begin. Let us see what is electrical circuit. Okay, an electrical circuit is a path or loop through which an electric current flows. Okay, a path or a loop. Circuit मतलब क्या होता है? Circuit is not open. Okay, circuit is always a closed path. ऐसा एक closed path होना चाहिए तो ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं या करंट पास हो सकता है. So what is it? It is a path or loop through which electric current flows. Understood? Okay. Now I have drawn a simple circuit over here. If you see, I have drawn a simple circuit with source, one resistor, key or a switch and load. Load मतलब load means जो भी आपका load है. Load is what? Load is a device at which you take output. That means this load can be a bulb, it can be fan, okay, it can be motor, okay, tube light, anything, right? And I have used wire to connect all these elements together. Understood? So this is a simple electric circuit. So can you see from this closed path, this is a close again. Okay, कहीं पे भी आपको open दिख रहा है नहीं. This is a closed path and through which this current is flowing. Okay, now let us see what is source, what is load, what is wire now. Okay, so source मतलब क्या है? Source is a device which supplies electric energy to the circuit. Okay, बराबर. अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होगा सर्किट को तो कुछ एक सोर्स होना चाहिए. सो सोर्स इज डिवाइस विच गिव्स एनर्जी टू द सर्किट. देन नेक्स्ट इज लोड. लोड मतलब क्या? लोड इज योर आउटपुट डिवाइस. सो इट इज द कंज्यूमिंग डिवाइस इन द सर्किट. जो भी सो लोड मतलब क्या है कि जो भी एनर्जी को कंज्यूम करेगा और आपको आउटपुट देगा, दैट इज अ लोड. देन व्हाट इज वायर? Wire is used to connect the load and source together, or wire is used to connect the different elements together. Then what is a controlling device? Controlling device मतलब यहाँ पे हम लोग ने की यूज किया है. You can use switch also. Okay, key or switch, one and the same thing, right? So if you turn on this key or switch तो आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा and आपको बल्ब ग्लो होगा. Okay, if this is off then bulb won't glow, right? Okay, so these are the some terms related to your electric circuit. This is a simple electric circuit. Okay, तो आपके घर में भी बल्ब होगा, फैन होगा. जब भी आप स्विच ऑन करते हो एंड फैन जब भी ऑन होता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कंप्लीट होता है. समझ में आ गया? ओके, सो लेट अस सी सम सिंपल टर्म्स. ओके, फर्स्ट इज करंट. सो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि करंट कैसे फ्लो होता है. It flows due to flow of electrons. बराबर. So what is a current? Current is defined as the rate of flow of electrons from one end to the other end of a conductor. Rate of flow of electrons from one end to the other end of the conductor. मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, वापस यहाँ पे ऐसे वो आएगा. मतलब यहाँ से वो क्या हो रहा है? कंप्लीट पाथ कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, समझ में आ गया? सो इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितना इलेक्ट्रॉन्स का रेट है, रेट ऑफ फ्लो है. मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स मोर करंट विल फ्लो, लेस इलेक्ट्रॉन्स लेस करंट विल फ्लो. अंडरस्टूड? सो इट इज डिनोटेड बाय आई. इट्स यूनिट इज एम्पियर. ओके, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर, कैपिटल ए. ओके, वाई कैपिटल ए? एम्पियर इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, सो यूनिट इज कैपिटल ए. बराबर. देन नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट लेट अस सी सॉरी EMF. EMF उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली एक मतलब ऐसा, दिस इज नॉट अ फोर्स एक्चुअली. ओके, ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों चाहिए? बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होते हैं, लेकिन क्यों फ्लो होते हैं? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक बैटरी या एक सोर्स कनेक्ट किया है जिसमें क्या होता है? EMF होता है.
okay, which provides EMF, and because of this source electrons flow. बराबर, अगर हम लोग ने ये निकाल दिया तो electrons will not flow in this direction and current भी वहाँ पे नहीं होगा. फिर समझ में आ गया. So EMF is electromotive force which causes the flow of electrons, which causes the flow of electrons. Okay, so another definition is, it is a source of energy that can cause a current to flow in electrical circuit. समझ में आ गया. Okay, simple. Okay, and unit, it is denoted by E and its unit is volt. Okay, EMF का unit क्या है? Volt है. Okay, next let us see what is potential difference. Okay, now potential difference क्या है? Okay, let us see the definition first. It is defined as the difference in potential at 2 points in electric circuit. ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रिक सर्किट है. ओके, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. बराबर. नाउ यहाँ पे ये पॉजिटिव बैटरी है, यहाँ पे नेगेटिव बैटरी है. यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा. ओके, यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल होगा, यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल होगा. सो डिफरेंस इन द पोटेंशियल at 2 points in electric circuit is called as potential difference. Okay, simple. So its unit is volts. Correct, समझ में आ गया. Okay, potential difference का unit भी volt है and EMF का unit भी volt है. Okay, तो दोनों भी difference क्या है actually? What is I mean students get confused between what is potential difference and EMF. दोनों में थोड़ा confusion होता है. Okay, now I'll tell you what is potential difference and what is EMF. देखो, यहाँ पे दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, डिफरेंस क्रिएट हुआ है बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव बैटरी, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कुछ एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है. लेकिन ये जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेंटेन कौन करता है? EMF. EMF maintains the potential difference and because of which the electrons flows through the circuit. Okay, so this is the difference between potential difference and EMF. Okay, hope you have understood. If not, you can ask doubts. Okay, अगर ज़्यादा आपको explanation चाहिए मैं ज़्यादा explain करूँगी. ठीक है. Then resistance. What is a resistance? Okay, it is defined as the property of a material to oppose the flow of current. Resistance क्या करता है या resistor क्या करता है? देखो, मैंने यहाँ पे एक resistor कनेक्ट किया है. क्यों resistor कनेक्ट किया है? ओके, क्योंकि देखो दिस इज अ सर्किट है, आपका एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने बताया था, एंड यहाँ दिस हियर करंट इज फ्लोइंग एंड हियर वी हैव कनेक्टेड अ बल्ब. सपोज ये करंट का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो व्हाट विल हैपन, हमारा बल्ब जो है वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है. सो टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, ओके, वी हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टर ओवर हियर. ओके, सो रेजिस्टर का फंक्शन क्या है कि करंट के फ्लो को वो लिमिट करेगा. ओके, बंद नहीं करेगा, लिमिट करेगा. सो इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. ओके, it is denoted by R and its unit is ohms. Okay, its unit is ohm. Yeah. Then next is power. Okay, let us see what is a power. Power is the rate at which work is done in an electric circuit is called electric power. Okay, अभी यहाँ पे एक टर्म आया है कि work is done. अभी आप बोलोगे ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? लेट अस सी. कैन यू सी इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर? ओके, व्हाट आई सेड, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. बराबर है, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से ऐसे पूरे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है. बराबर है, ये फ्लो हो रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, है ना. अगर आपके मम्मी ने आपको बोला कि आपको शॉप में जाना है कुछ सब्जी खरीदने के लिए या कहीं पे जाना है, तो आप वहाँ पे जाके आओगे और क्या बोलोगे? मैंने कुछ काम किया, ऐसे आप बोलोगे. बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल रहे कि हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं. ठीक है, सो हियर सम वर्क इज हैपनिंग, कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो वो वर्क जितने भी रेट पे हो रहा है, ओके, इट विल डिसाइड द पावर. सो व्हाट इज अ पावर? द पावर मीन्स रेट एट विच वर्क इज डन.
इज कॉल्ड द पावर। जितना ज़्यादा पावर होगा उतना वर्क का रेट ज़्यादा होगा, जितना कम पावर होगा उतना वर्क कम होगा। आर यू गेटिंग? बराबर? Okay, so power is nothing but the rate at which work is done in an electric circuit is called electric power. Okay, unit of power is watt, capital W. Okay, and there are some formulas of power. Power is equals to V into I. What is V? V is voltage, I is current. So power is nothing but product of voltage and current. Okay, it is okay. और भी कुछ उसके फॉर्मूलाज है, लाइक P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. दिस डिपेंड्स ऑन दी ओम्स लॉ. यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज ओम्स लॉ. V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. ठीक है. सो इफ यू पुट डिफरेंट वैल्यूज यू विल गेट दी different formulas. Okay, so the basic formula is P is equals to V into I. Okay, now let us see energy. Okay, so what is energy? Energy is the total work done in an electric circuit is called electric energy. Total work done in electric circuit. अभी मैंने बताया work done मतलब क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क मतलब क्या होता है. ठीक है, इफ यू आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स और इफ यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स तो आप कुछ काम कर रहे हो. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो कुछ काम हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन. सो एनर्जी मतलब क्या? टोटल वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना काम होगा वो डिसाइड करेगा उसका एनर्जी. बराबर है. अगर आपको कुछ काम करने बोला, अगर आप में एनर्जी नहीं है, आपने 10 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर सकते हो अच्छे से. बट जो एकदम हट्टा खट्टा है, अच्छे से खाता है, हेल्दी फूड खाता है, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है ना. सो क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा वर्क डन, जितना कम एनर्जी उतना कम वर्क. सो टोटल वर्क डन विल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. अंडरस्टूड? सो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम. ओके, सो दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर इज V इंटू आई. बराबर, V इंटू आई मैंने बताया. So electrical power is V into I into time is T. So it is VIT. दूसरा एक फॉर्मूला था I square R. So if you put I square R, you will get I square RT. And और एक फॉर्मूला है V square by R. So V square by R into T. Understood? Then electrical energy is measured in kilowatt hour. Okay, kilowatt hour. Hour क्योंकि यहाँ पे क्या है? किलोवाट क्यों? बिकॉज पावर का यूनिट इज वैट. ओके, एंड टाइम का यूनिट यहाँ पे लिया है आर. ओके, सो किलोवाट आर. अंडरस्टूड? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट. ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड. अगर नहीं समझ में आ गया, आप डाउट पूछोगे, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. वॉट एवर, मतलब जहाँ पे भी डिफिकल्टी है वो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. नाउ लेट अस सी मैग्नेटिक सर्किट. ओके, नाउ व्हाट इज अ मैग्नेटिक सर्किट? ओके, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था? इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया था. बराबर है. अभी यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक सर्किट ड्रॉ किया है. तो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे देखो एक कुछ तो ऐसा फ्रेम जैसा है. यहाँ पे आई हैव जस्ट कनेक्टेड वन वायर. बराबर. नाउ इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सपोज एक कॉपर वायर यूज किया है और सर्किट बनाया है. तो यहाँ पे ये क्या यूज किया है? दिस इज nothing but a magnetic material. This is, I have used one magnetic material and through this magnetic material ये कुछ तो भी फ्लो हो रहा है. जैसे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी ये फ्लो हो रहा है. क्या फ्लो हो रहा है? लेट अस सी, मैं बताऊंगी आपको. ठीक है. एंड यहाँ पे कुछ वायर्स भी दिख रहा है, कुछ करंट है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज दिस मैग्नेटिक सर्किट एंड व्हाट इज मैग्नेट एंड ऑल. ओके, सो लेट अस सी सम बेसिक. ओके, आपको पता है कि मैग्नेट क्या होता है. बराबर. ओके, मैग्नेट विच कैन अट्रैक्ट एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड आई मीन ए मटेरियल विच अट्रैक्ट्स एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अ मैग्नेट. ओके, सो सपोज मेरे पास ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है. बराबर. ओके, मैग्नेटिक मटेरियल उसमें क्या होता है? दिस इज अ मैग्नेट एंड इट हैज गॉट अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, दिस यू मस्ट बी नोइंग, सबको पता होगा. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ लाइन्स ऑफ फोर्सेस है. बराबर है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस है. सो दिस लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ठीक है, नॉर्थ पोल में स्टार्ट होते हैं और टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं? वो साउथ पोल में, लाइक दिस.
बराबर है. Okay, and these lines are called as line of forces. Okay, so ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है, ओके, इसका अगर आप टोटल करोगे तो उसको बोलते हैं फ्लक्स. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्लक्स. व्हाट इज अ फ्लक्स? फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज फ्लक्स. ये पूरे लाइन्स ऑफ फोर्सेस जितने भी होंगे उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स. समझ में आ गया? सो इलेक्ट्रिकल सर्किट से करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक सर्किट से क्या फ्लो होता है? फ्लक्स. एक्चुअली फ्लक्स फ्लो नहीं होता, वो ट्रांसफर होता है. ठीक है. सो इन मैग्नेटिक सर्किट वी हैव गॉट अ फ्लक्स एंड इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी हैव करंट. राइट. तो यहां से ये क्या फ्लो हो रहा है? दिस इज नथिंग बट फ्लक्स. ओके, अब ये फ्लक्स कैसे सेटअप हुआ, यहाँ पे कैसे आया? सो लेट अस सी दैट. ओके, so what is a magnetic circuit? The circuit in which magnetic flux flows is called magnetic circuit. Electric circuit मतलब a circuit or a closed path through which current is flowing, then it is called electric circuit. And magnetic flux अगर flow होता होगा तो उसको बोलेंगे magnetic circuit. वो भी closed path था, ये भी closed path है. ओके, समझ में आ गया? ठीक है. Now this is दिस सर्किट एंड सी, यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में मैंने क्या क्या कनेक्ट किया है. देर इज अ वायर विच इज वाउंड ऑन दिस फ्रेम. ओके, तो ये क्या है? ये फ्रेम क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक मटेरियल. एक अभी मैग्नेटिक सर्किट है तो मैग्नेटिक मटेरियल ही यूज करना पड़ेगा. सो देर इज वन मैग्नेटिक मटेरियल टू विच अ वायर इज वाउंड एंड यहाँ पे हम लोग एक सोर्स देते हैं. ओके, एक सोर्स देते हैं या फिर बैटरी कनेक्ट करते हैं एंड we flow and through it current will flow. okay, जब भी आप सोर्स कनेक्ट करोगे यहाँ से करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. तो यहाँ से करंट फ्लो होता है वायर से एंड बिकॉज करंट फ्लोज यहाँ से आपका फ्लक्स क्रिएट होता है एंड फ्लक्स विल ट्रांसफर टू दिस सर्किट. ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ एंड ऑल, जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं. सो अभी के लिए इतना समझ लो कि बिकॉज यहाँ से ये जो वायर वाउंड किया है यहाँ से करंट फ्लो होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इज induced over here and this magnetic flux will transfer or flow through this magnetic material. This is a simple circuit of magnetic circuit. Okay, now what is this N? N is number of turns of this wire. ये जो वायर हम लोग ने ऐसे वाउंड किया है ना, उसका जितना भी टर्न्स वहाँ पे है, जितना भी टर्न्स वहाँ पे है उसको बोलेंगे N is nothing but number of turns. So I is current. What is this? फ्लक्स. ये फ्लक्स का सिंबल है. फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? ऐसे. ठीक है. सो दिस इज फ्लक्स. N is number of turns. समझ में आ गया what is magnetic circuit? Okay, so let us see some terms. Magnetic, first is magnetic flux. So what is magnetic flux? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. ठीक है. The total number of magnetic lines of force, total number of magnetic lines of force produced is called magnetic flux. This magnetic flux is denoted by phi. इसको बोलते हैं phi. Okay, magnetic flux is denoted by phi. Its unit is Weber. Its unit is what? Weber. WB. Okay, WB ऐसे आपको लिखना है वेबर को. ठीक है, इन शॉर्ट. Okay, then next is magnetomotive force, MMF. Okay, so let us see what is MMF. Okay, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा? इलेक्ट्रिक सर्किट में there is EMF, मैग्नेटिक सर्किट में there is MMF. Okay, दोनों का मीनिंग सेम है. So what is MMF? The force which has ability to create a magnetic flux in magnetic circuit is called MMF. Okay, EMF क्या है? What is EMF? EMF is a source of energy that causes current to flow. बराबर, उसको EMF बोलते हैं. तो MMF क्या करेगा? मैग्नेटिक सर्किट है तो MMF को क्या क्रिएट करना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना चाहिए. ओके, सो इट इज नथिंग बट MMF is also a source or a force which has ability to create magnetic flux in magnetic circuit. अगर मैग्नेटिक सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है तो जो उसको फ्लो करवाता है that source is called MMF or magnetomotive force. Okay, it is analogous to EMF. इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF है करंट फ्लो करने के लिए, यहाँ पे MMF है फ्लक्स फ्लो करने के लिए. समझ में आ गया? ओके, दिस इज द फॉर्मूला. MMF is phi into S.
एस इज रिलक्टेंस, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है. So it is what MMF is flux into S, reluctance. Okay, and और एक फॉर्मूला है MMF is N into I. N into I. N into I मतलब I is what? This current. I is current and N क्या है? N is what? Number of turns. Q. Why it is the product of N and S? N and I. Because देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया वेन एवर वी कनेक्ट अ सोर्स करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर एंड बिकॉज ऑफ विच फ्लक्स विल प्रोड्यूस. ओके, नाउ जब भी ये वाले वायर से करंट फ्लो होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब वायर को हम लोग ने वाउंड किया है, जितना टर्न्स इसमें होगा ओके उतना एमएमएफ ज़्यादा होगा. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बनाएगा आपका MMF. It will decide the value of MMF. Okay, so current, amount of current flowing and number of turns will decide MMF. So it is the product of N into I. समझ में आ गया थोड़ा? Okay, understood? So hope you have understood this. Now next let us see permeability. What is permeability? Permeability is the ability of a material to conduct magnetic lines of force through it. क्या है? Ability of a material to conduct magnetic lines of force. बराबर. Permeability मतलब क्या? Suppose we have got two materials. आपके पास दो मटेरियल है. ओके, एक मटेरियल बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस को कंडक्ट करता है, एक बहुत कम मैग्नेटिक लाइंस को कंडक्ट करता है. ठीक है, तो वो उसका प्रॉपर्टी हुआ. मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्ट करता है उसका परमिएबिलिटी ज़्यादा है. जो मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस कम कंडक्ट करता है उसका परमिएबिलिटी कम है. ओके, जैसे कंडक्टर, यू हैव गॉट डिफरेंट कंडक्टर है, डिफरेंट कंडक्टर्स यू हैव, राइट. मतलब एग्जाम्पल कॉपर कंडक्टर है वायर्स में. ओके, कॉपर है, देन एल्यूमिनियम है, बराबर. सो कुछ वायर्स ऐसे, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, व्हाट वी से, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? बिकॉज वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. वैसे ही कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ट्रांसफर करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं. तो जो ज़्यादा करते हैं उसका परमिएबिलिटी ज़्यादा. ठीक है, सो दिस इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट. ओके, इसका it is denoted by mu. Okay, and formula is mu is equals to mu 0 into mu r. Okay, mu is equals to mu 0 into mu r, where mu 0 is absolute permeability and mu r is relative permeability. Okay, absolute permeability and relative permeability, these are the two different terms. Okay, now mu 0 का वैल्यू है 4 pi into 10 raised to minus 7 h by m. Okay, Henry per meter. Okay, and mu r is relative permeability whose value is 1 for air and vacuum. मतलब अगर मीडियम जो आप यूज़ कर रहे हो वो एयर है या वैक्यूम है तो उसका वैल्यू होगा 1. अंडरस्टूड? सो आपको इसमें सिर्फ डेफिनेशंस पता होने चाहिए और एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन परमिएबिलिटी, डिफाइन मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फॉर 2 marks, 1 mark फॉर परमिएबिलिटी, 1 mark फॉर मैग्नेटोमोटिव फोर्स. ओके, सो ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड नो दी डेफिनेशन एंड दी फॉर्मूला. नेक्स्ट लेट अस सी रिलक्टेंस. ओके, रिलक्टेंस क्या है? रिलक्टेंस इज डिनोटेड बाय S. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों ने क्या देखा था? रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टर. वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है. वहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टर रेजिस्ट और इट लिमिट्स द फ्लो ऑफ करंट. वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है जो क्या करता है? द अपोजिशन ऑफर्ड टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड रिलक्टेंस. बराबर. यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. किसमें? इन मैग्नेटिक सर्किट. मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसको जो अपोज करेगा उसको बोलोगे रिलक्टेंस. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है?
इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट को जो अपोज करता है उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? सो रिलक्टेंस इज the opposition offered to magnetic flux in magnetic circuit is called reluctance. Okay, it is analogous to resistance. Okay, analogous to resistance मतलब electric circuit में you have resistance and magnetic circuit में you have reluctance. Okay, and its formula is S is equals to L divided by A into mu, where L is length, okay, and A is area. Okay, and this is mu. Mu is what? Permeability, जो हम लोग ने अभी देखा। समझ में आ गया? रिलक्टेंस क्या है? सिंपल है। ठीक है। Then leakage factor. What is a leakage factor? The ratio of total flux to useful flux is called leakage factor or leakage coefficient. Okay. Now, what is total flux and what is useful flux? Okay. We have seen a simple circuit over here. बराबर है? ये simple circuit देखा हम लोगों ने। Now, through this circuit, flux is flowing. This total flux is flowing through this circuit. कुछ flux flow हो रहा है। ठीक है। अभी not necessary कि ये flux पूरा का पूरा ये मटेरियल से ही flow होगा। कुछ flux जो है यहाँ से थोड़ा सा लीक हो जाता है। ओके, सो some flux will leak through this area. ओके, यहाँ से थोड़ा सा फ्लक्स कुछ लीक हो जाता है। दिस फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। ये फ्लक्स को क्या बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। बराबर है। सो टोटल फ्लक्स मतलब दिस फ्लक्स एंड ये जो फ्लो है ये टोटल फ्लक्स एंड दिस इज लीकेज फ्लक्स। ओके, सो व्हाट इज लीकेज फैक्टर? व्हाट इज लीकेज फैक्टर? कैसे डिफाइन करोगे आप लीकेज फैक्टर को? लीकेज फैक्टर इज रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स। Understood? Okay, and it is denoted by lambda. Okay, and this lambda is equals to total flux divided by useful flux. Okay, so these are the terms related to magnetic circuit. Okay, so we have done with electric circuit, magnetic circuit, terms related to electric circuit and terms related to magnetic circuit. Okay, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हो। जो भी आपका डाउट है, आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू।